हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू अ कर्व एट एनी पॉइंट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाउ डू वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना ऑलरेडी जानते हैं एंड वी इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ the derivative to the curve at that point. Now उसी concept को use करके we'll try to find equation of normal. I hope आप सभी इस term normal से acquainted है। हम coordinate geometry में already पढ़ चुके हैं what is a tangent and normal to a curve. In case नहीं पता हो तो हम बहुत ही जल्दी से एक बार इस definition को भी revise कर लेते हैं। Let us say ये है मेरा curve y equals to f of x. So this is my curve represented by y equals to f of x and this is my point P on the curve. तो हमने इस curve पे कोई भी point ले लिया P. Now what I have to understand is the definition of normal to this curve at point P. Now as per the definition of a normal, the normal to the curve at point P is a line which passes through P and is perpendicular to the tangent at P. So ये क्या कहते हैं डेफिनेशन में? नॉर्मल क्या है? ऐसी लाइन जो P से पास करती है और P से जो tangent है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम P से जो tangent है उसे ड्रॉ करते हैं। So let us say ये है PT which is the tangent to the curve at point P. And what is normal? Normal एक ऐसी लाइन है जो P से पास होती है और PT के परपेंडिकुलर है। So मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ PN such that it passes through P and is perpendicular to this tangent PT. And हमें इस लाइन PN की इक्वेशन पता करनी है। Now हम जानते हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला वो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास करती है और दूसरा उसका स्लोप क्या है। इन दिस केस Pn, वी नो दैट Pn passes through this point P and let us say उसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन Pn. नाउ अगर मुझे कर्व की इक्वेशन पता है तो मैं Pt का स्लोप तो आसानी से निकाल सकती हूँ। व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ Pt? लेट अस से द स्लोप ऑफ Pt इज m. So I know m, which is the slope of Pt in this case, would be dy by dx at x equals to x1. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले डिस्कशन में। Now let us try to express this Pn in terms of the slope m. अगर हम m के टर्म्स में Pn का स्लोप एक्सप्रेस कर पाए तो हम Pn का स्लोप आसानी से निकाल पाएंगे। Now let us say PT makes an angle of phi with the x-axis. Now ये एक ट्रायंगल है PTN, इसमें ये एंगल phi है और ये एंगल 90 डिग्री है। So this angle would be 90 degree plus phi, or we can say that PN makes an angle of 90 plus phi with the x-axis. This means slope of PN is equals to tan of 90 plus phi and which is equals to minus cot phi. Now हमें m पर की वैल्यू पता है which is the slope of PT. So we know m is dy by dx and x equals to x1 and this is even equals to tan phi. तो हमें पता है tan phi की वैल्यू है dy by dx. So you can write cot phi as minus 1 upon dy by dx. Because cot phi is what? It is minus 1 upon tan phi and tan phi is dy by dx. So we can write slope of Pn is minus dx upon dy and this is at x equals to x1. यहाँ से हमें Pn का स्लोप पता चल गया और हम ऑलरेडी जानते हैं that Pn passes through point x1, y1. So I can easily write the equation of Pn. It would be y minus y1 into equals to minus 1 upon dy by dx into
x minus x1. This is the equation of our tangent to the curve at point P, which is x1 comma y1. इसी को मैं और सॉल्व करूं तो we'll get this equals to y minus y1 into dy by dx plus x minus x1 equals to 0. So this is the general equation of a tangent to a curve at point x1 comma y1 and the equation of the curve is y equals to fx. तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इक्वेशन. जैसे हमने टैंजेंट की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वैसे ही इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग, इफ दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू y axis, if normal is parallel to y axis, the normal is parallel to y axis. If this normal is parallel to y axis, then 90 plus phi will be equals to 90 degree. This implies phi will be equals to 0. Or what is phi? So what would be the value of tan phi? Tan phi in this case would be 0, which implies dy by dx will be equals to 0. So if normal is parallel to y axis, then dy by dx will be equal to 0. Next property, if normal is parallel to x axis, अगर normal जो है वो x axis के parallel है, so 90 plus phi is going to be equals to 0 degree or phi would be equals to minus 90 degree. So from here what would be the value of tan phi? Tan phi would be minus infinity. This implies at this point of time dx by dy is going to be equals to 0 और dy by dx would be equals to minus infinity. ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है. सो इन केस अगर क्वेश्चन में दिया है tangent is parallel to y axis और normal is parallel to y axis, तो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं. नाउ एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं यहाँ आपको सिखाना चाहती हूँ. हमने एक शॉर्टकट देखा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट फॉर अ सेकेंड डिग्री कोनिक. वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी बताऊंगी. सो दिस इज अ नोट, आई विल रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस डाउन और इसे अपने रिवीजन फॉर्मूला में कहीं लिख दीजिएगा कि आप इसे याद कर सके. तो दीज आर वेरी शॉर्ट ट्रिक्स की कभी कभी नॉर्मल की इक्वेशन पता करें तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लाइक दिस कंप्लीटली हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें और सीख सकें. सो if we have a conic of this form, ax square plus 2hxy plus by square plus 2fx plus 2gy plus c equals to 0. So अगर हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कोनिक है जिसकी इक्वेशन ये है, तो अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी नॉर्मल की इक्वेशन पता करने के लिए. तो सबसे पहले तो आप इस टाइप का डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, a h f सॉरी लेट दिस इक्वेशन बी 2gx प्लस 2fy, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कोनिक की इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं. तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी a h g, ऐसा डिटर्मिनेंट बनाइए, फिर h b f एंड g f c. सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट बना लीजिए. नाउ राइट टू इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म, ax1 प्लस hy1 प्लस g, और दूसरी इक्वेशन लिखिए hx1 प्लस by1 प्लस f. नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वुड बी x minus x1 upon ax1 plus hy1 plus g equals to y minus y1 upon hx1 plus by1 plus f. So this is the shortcut
to find equation of a normal for a second degree conic. Once again मैं emphasize कर रही हूँ कि this shortcut is just for finding equation of a normal for a second degree conic. अगर conic equation second degree में है तभी ये formula apply होगा. And very important point, now ये apply formula apply करने से पहले सबसे पहले आप अपनी equation को इस standard form में reduce जरूर कर लें, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा. सो what are the steps? First reduce the equation of the normal, equation of the curve in this standard form. फिर ये डिटर्मिनेंट बनाइए AHG, HBF एंड GFC. और एक बार ये डिटर्मिनेंट बन गया तो ये दो इक्वेशन लिखिए AX1 BY1 G और HX1 BY1 प्लस F. What is X1 Y1? जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है, और उसके बाद इक्वेशन को इस तरीके से लिख दीजिए x minus x1 equals to ax1 plus hy1 plus g equals to y minus y1 upon hx1 plus by1 plus f. So this is a shortcut to find equation of a normal for a second degree conic. आप सभी इसको नोट कर लीजिए. दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसे अपने रिवीजन शीट में तो पक्का लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे नॉर्मल की इक्वेशन पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा एंड इट विल बी रियली फास्ट. सो आप सभी इसको नोट कर लीजिए. अब कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं बेस्ड अपॉन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. तो क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द नॉर्मल्स टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos theta plus theta sin theta plus theta sin theta and y equals to a into sin theta minus theta cos theta. So we have been given this curve x equals to a cos theta plus theta sin theta and y equals to a sin theta minus theta cos theta, and we have to show that the normal to this curve are at a constant distance from origin. So हमें प्रूव करना है कि इस कर्व पे ड्रॉ किए गए सारे नॉर्मल्स ओरिजिन से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx. dy by dx पता करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. सो दिस वुड बी dy by d theta अपॉन dx by d theta. व्हाट इज dy by d theta? इट इज a sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta माइनस cos theta माइनस theta sin theta अपॉन a इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस थीटा cos थीटा. सो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट? दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा. सो व्हाट वी गेट? द वैल्यू ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू tan थीटा. सो अगर यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, we know what is the equation of normal. It is y minus y1 into dy by dx equals to plus x minus x1 equals to 0. So let us assume x, and यहाँ पे इस इक्वेशन को इस तरीके की जगह हम इस तरीके से लिख सकते थे, because we are applying it for a general case. So let it be of this form: y minus y into dy by dx equals plus x minus x equals to 0. Now y की वैल्यू क्या है? It is a sin theta minus theta cos theta into what is dy by dx? It is tan theta plus x minus what is x? It is a cos theta प्लस थीटा साइन थीटा. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a. इसको सॉल्व करने के बाद दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस फॉर्म: x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a.
यहां से अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, दैट वुड बी 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस मॉड ए अपॉन अंडर रूट ऑफ cos square theta plus sin square theta, which is equals to 1. So the distance turns out to be a, which is a constant. This means all the normals to this curve are at a constant distance from origin. आसान सा क्वेश्चन था, बस इंपॉर्टेंट था कि हम नॉर्मल की इक्वेशन सही तरीके से निकाल दे और फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दे। दिस वाज अ हाइब्रिड क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करना था, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी थी और बाकी नॉर्मल का कॉन्सेप्ट तो था ही। लेट अस सॉल्व अनदर इलस्ट्रेशन। इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लिया सभी ने? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी पे एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन ax plus by equals to 1। तो हमारे पास एक लाइन है ax plus by equals to 1 and we have to find the condition that this line may be a normal to the curve whose equation is given by a to the power n minus 1 into y equals to x to the power n। So ये कर्व है और हमें कंडीशन पता करनी है for which our line ax plus by equals to 1 can be a normal to this curve। So ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? What we can do is कि हम इस इक्वेशन के लिए नॉर्मल की इक्वेशन पता करें, जनरल इक्वेशन, और फिर उसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। Once we do that, तो हम ए और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन तो पता कर ही पाएंगे। ऑलमोस्ट सेम टाइप का कॉन्सेप्ट हम इसी में भी अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से नॉर्मल का स्लोप पता करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज द इक्वेशन? वी हैव a to the power n minus 1 y equals to x to the power n। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस टेक log on both side, तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो ऑन टेकिंग log on both the side, what we have, this would be equals to n minus 1 log a plus log y। This is equals to n into ln x। दोनों साइड पे हमने log ले लिया। Now let us differentiate this। So n minus 1 log a would be 0 because this is a constant। This would be 1 upon y dy by dx and this is n upon 1 upon x because log x का differentiation हम सभी जानते हैं, it is 1 upon x। This implies dy by dx from here is equals to n into y by x। So this is the value of dy by dx or the slope of tangent to the curve at any point। This implies slope of normal would be minus dx upon dy, which is equals to minus x upon ny। So this is the slope of the normal। Now हम चाहते हैं वो कंडीशन पता करना जिसके लिए ये इक्वेशन इस कर्व की नॉर्मल हो। अगर ये इक्वेशन इस कर्व की नॉर्मल है तो इस इक्वेशन के स्लोप को भी इस स्लोप की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो लेट अस से यहां से स्लोप क्या आता है, इस लाइन का स्लोप यहां से आएगा माइनस a upon b। From here we know that the slope of this curve would be minus x upon ny और यहां से हमें मिलता है that the slope of this line would be minus a upon b। So let us equate these two slopes because ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन भी इसी कर्व की नॉर्मल है। So what we get, minus x upon ny is equals to minus a upon b or what I can write is x equals to a ny upon b। So ये x और y में हमें रिलेशन मिला when we equated the slope of the curve and the slope of the line। Now ये जो पॉइंट है x equals to a and y upon b, ये हमारे कर्व पे भी लाई करेगा और इस लाइन पे भी लाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन
of the curve and the slope, okay, of the curve and the tangent. So we know x equals to a n y by b, and let us satisfy first with the equation of the curve. So equation of the curve क्या है? a n minus y equals to x to the power n. और यहां से हमें x की वैल्यू पता है, तो इसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं. सो व्हाट वी गेट, a to the power n minus 1 y equals to x की जगह हम लिख सकते हैं a n y upon b to the power n. यहां से what do we get, a to the power n minus 1 equals to a to the power n to the power n, y to the power n upon b to the power n, and this is y. अगर y को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो we get this as y to the power n minus 1, और a to the power n minus 1, b to the power n upon a to the power n to the power n, this is equals to y to the power n minus 1, or we can say y equals to this complete thing to the power 1 upon n minus 1. So यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई. Once we know the value of y, we can easily find the value of x. X is what? X is equals to a n upon b into y, and what is y here? It is a to the power n minus 1, b to the power n upon a to the power n to the power n upon 1 upon n minus 1. So ये यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिली, और x और y की वैल्यू हमें कैसे मिली? हमने इस कंडीशन को, जो हमें दोनों इक्लाइंस, जो हमें कर्व की नॉर्मल के स्लोप और यहाँ से इस लाइन के स्लोप को इक्वेट करके मिली, इसे हमने पहले सेटिस्फाई किया इक्वेशन ऑफ द कर्व के साथ. नाउ दिस इक्वेशन must even satisfy the equation of the slope of the line, that is ax plus by equals to c, or we can say that these 2 points x और y जो हमें यहाँ से मिले, इन्हें भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो let us say this value is equals to y1 and this value is equals to x1 for now. So I can write ax1 plus by1 must be equals to 1, or a into this complete thing plus b into this complete value, this must be equals to 1. And here y is completely in terms of a, b, capital A and n, और यहाँ पे भी similarly x is even in terms of all the given terms. So इन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली a और b के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं. तो वंस वी सॉल्व दिस कंप्लीट इक्वेशन, हमें क्वेश्चन में जिस भी तरीके से रिलेशन माना हो, हमें उस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहले तो हम ये समझ पाते कि इस कर्व की जो स्लोप, नॉर्मल का जो स्लोप निकलता, हम उसे इसमें सेटिस्फाई करके x और y में रिलेशन निकालते, और फिर ये समझना कि ये जो पॉइंट है, ये जो रिलेशन मिला, ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, और उनको सेटिस्फाई करके ये इक्वेशन पता करना. सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज अ वेरी इजी टर्म. द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगा के उसे उस रिलेशन तक लेके आना. आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर था. ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे स्पेशली यहाँ पे सॉल्व करवाया. हम इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन शीट में जरूर सॉल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी समझना जरूरी होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस, which is we will study some more important definitions related to tangents and normals. तो अभी भी हम tangent and application of derivative for finding tangents and normals से कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में भी हम ऑलमोस्ट यही टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. So now let us discuss our next topic. आपने ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना? नहीं, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए.